اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سمری تو نہیں، البتہ یہ ٹاپک تھا کہ رب کریم کی یاد اور عبادت میں کیا فرق ہے، اور رب کریم کا ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سے طریقے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم رب کریم کو یاد کر سکتے ہیں۔ عبادات کا چونکہ رب کریم نے ہر عبادت کا وقت تعین کیا ہے، خواہ وہ سال میں ایک بار ہو، ہر روز ہو، دن میں 5 بار ہو، نفلی عبادات ہوں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، سب کا تعین ہے اور وقت کے ساتھ ان کا لنک ہے۔ لیکن چونکہ رب کریم کی نے اپنی یاد جو ہے اس کے لیے کسی زمان و مکان اور کسی وقت کا جو تعین ہے وہ نہیں کیا۔ اس کے لیے رب کریم نے حکم دیا ہے کہ میری یاد کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو، اور میرے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہر وقت رہے، اور اس رابطے کے دوران جن عبادات کا کہا گیا ہے ان عبادات کو بجا لاؤ۔ تو جو انسان کا رب کریم کے ساتھ کنیکشن ہے، یہ سسٹینڈ کنیکشن ہے۔ ذکر سے مراد سسٹینڈ کنیکشن ود اللہ رب العزت۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے ہدایات فرمائی ہیں اور کیسے اس پر عمل کیا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی پاکی صبح و شام بیان کرو۔ اور اسی طرح سے سورہ منافقون میں بھی کہا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد خدا کی یاد سے غافل نہ کرے، بس جو شخص غافل ہو جائے وہی خسارہ پانے والوں میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مال و دولت، اولاد ذکر الہی سے ایمان والوں کو غافل نہیں کر سکتی۔ اہل ایمان کو بہرحال نصیحت کی جا رہی ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں، ناسازگار ہوں اور دشمن کتنی ہی مخالفت کرے، سر پر ہو اور اس کی پرواہ نہ کرے، میرے ساتھ رابطہ ہر صورت رکھیں، اور اس بات پر دھیان رکھیں کہ رب کریم کی منشا کیا ہے۔ چونکہ کنیکشن اگر کسی اور طرف ہو جائے تو پھر ہر چیز بے معنی ہو کر رہ جائے گی، ہر عبادت بے معنی ہو جائے گی۔ تو رب کریم کا ذکر عبادت کو معنی دیتا ہے، چونکہ اس سسٹینڈ کنیکشن کے اندر نماز بھی آتی ہے، اسی میں روزے آتے ہیں، اسی میں زکوٰۃ کا آ جاتا ہے، اسی میں عمرے اور حج آ جاتے ہیں، اسی میں قربانی آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو منقطع کر کے الگ سے کہا جائے۔ پھر یہ بھی فرما دیا وہ مرد کہ ان کو تجارت و سوداگری غافل نہیں کر سکتی اللہ کے ذکر اور اقامت نماز سے اور زکوٰۃ دینے سے، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں آنکھیں اور دل پھر جائیں گے، اور اپنے پروردگار کو یاد کر اپنے دل میں عاجزی اور ڈر سے اور پست آواز سے صبح و شام اور غافلوں میں سے مت ہو جا۔ بے شک نماز بے حیائی اور منکر چیزوں سے روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ جب عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور اسے اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ جب تم مناسک حج پورا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے تھے،
बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र खुदाबंदी करो। यानी हज की तकमील के बाद भी, हज से पहले भी कनेक्शन रब करीम के साथ रखना जरूरी है। और रब से कनेक्शन उसका जिक्र है, उसकी याद है, जो सस्टेन मांगा है रब करीम ने। और ये भी है कि रब करीम को याद करने वाले को उलल अलबाब के नाम से याद किया गया है। और इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो रब को याद रखते हैं, रब की याद में रहते हैं, किसी भी काम, किसी भी लम्हे जो सोचते हैं पहले रब को सोचते हैं, जो करते हैं पहले रब को सोचते हैं। यही वजह है कि वो ऐसे कामों से बाज रह जाते हैं कि उनके दिल में फौरन रब की याद आ जाती है। जो काम रब करीम को पसंद नहीं, जो अखलाकियात से गिरे हों, जो दीन के हदूद से बाहर हों, ऐसे लोगों को साहिब फहम व बसीरत कहा गया है। उनकी इस जीरे को, फहीम को सूरह अल इमरान में जिक्र किया गया है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार ला आयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ी यज़करूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन। आसमानों और जमीनों की पैदाइश और रात दिन के उलटने पलटने में यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े बैठे, अपने करवटों पर लेटे, और आसमान और जमीन की पैदाइश में फिक्र करते हैं और कहते हैं कि मेरे परवरदिगार, तूने बेफायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अजाब से बचा। क्योंकि इबादत का एक तरीका बता दिया गया, हर इबादत का तरीका रब करीम ने बता दिया। नमाज का एक खास तरीका, हज का एक खास तरीका, ज़कात का एक खास तरीकाकार वजह कर दिया। लेकिन अपने जिक्र का क्या कह दिया? खड़े बैठे, अपनी करवट बदलते हुए, अल्लाह अकबर, कि याद रखो, मुझे याद करो। और जो ये करते हैं उनको रब करीम ने कुरान पाक में उलिल अलबाब, अक्लमंद कहा गया कि ऐसे लोग अक्लमंद हैं। सूरह मुज़म्मिल में है, वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल अलैहि तब्तीला, अपने रब के नाम याद करो और दीगर अदियान बातिला से कट कर उसकी तरफ आ जाओ। सस्टेन कनेक्शन ही बाकी चीजों से अलग रख सकता है, और कोई सूरत नहीं है। ये तवज्जो की बात है। वज़्कुर इस्म रब्बिका बुकरातन व असीला, सूरह दहर, कि अपने रब का नाम सुबह शाम याद करो। आप, एक वाकया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आदत थी, मामूल था रज़ी अल्लाह अन्हु, कि वो हमेशा इबादत और जिक्र अल्लाह का बड़े आहिस्ता से दिल में किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत भी और जिक्र जो है वो बुलंद आवाज से किया करते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों साहिबों से उनके इस रवैये के इंतखाब से मुतल्लिक भी पूछा, तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिसकी इबादत और जिक्र मैं करता हूँ वो मेरी सरगोशियों से भी वाकिफ है। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मेरा मकसूद है कि सोने वाले होशियार हों और वो भी जिक्र और फिक्र की तरफ मुतवज्जो हों। थोड़ी सी आवाज के साथ जिक्र का इसलिए कहा गया कि हो सकता है सुनने वाला भी अपने जिक्र में मशगूल हो जाए, हो सकता है वो भूला हुआ हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इस अंदाज को पसंद फरमाया। जिक्र करने वालों की सिफात में ये भी फरमाया गया कि ये वो लोग हैं, होते हैं कि जिनकी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना मिलता है। और यही वजह है कि रसूल खुदा की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। उस शख्स के लिए जो भी अल्लाह की जात पर उम्मीद रखे और जो हमें आखिरत पर यकीन रखे और अल्लाह का जिक्र बहुत करे। ये रब का जिक्र जो है उसकी कसरत जो है, इस पर बड़ा ध्यान दिया गया है। और कसरत विदाउट फेल कनेक्शन जो है उसके
हो सकती है और कोई नहीं है। फिर ये भी कहा कि जब तुम अपनी नमाजें पूरी कर चुको तो खुदा को याद करो। अब देखना जरा, खड़े हुए, बैठे और अपनी करवट पर, यानी हर पहलू से खुदा को याद रखो। ये मंशा है। रब करीम का फरमान है कि फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरा जिक्र करो कि मैं तुम्हारी मजलिस से, बुलंदतर मजलिस में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और नाशुक्री मत करो। जिक्र करने वाले को खुदा भी याद करता है। उससे बड़ी मोहब्बत और क्या हो सकती है। ऐसी नफा मंद हकीकत कि जिसके बारे में ही फरमा दिया, खबरदार खुदा के जिक्र से दिलों में इत्मीनान और तमानीत पैदा हो जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये दिलों का सुकून जो है, दिलों का इत्मीनान सिर्फ रब करीम की याद में है, रब करीम के जिक्र में है। यही वजह है कि एक जगह फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि 4 चीजें ऐसी हैं जिस शख्स को अगर मिल जाएं तो उसको दीन और दुनिया की भलाई मिल जाती है। पहली चीज वो जुबान जो जिक्र में मशगूल रहे, अल्लाह अकबर। दूसरी चीज वो दिल है जो शुक्र करने वाला, और तीसरी चीज वो जिस्म है जो मुशक्कत बर्दाश्त करे, और चौथी चीज वो बीवी है जो अपने नफ्स में और खामद के माल में खयानत न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर चीज के लिए मैल किचैल दूर करने वाली और कोई साफ करने वाली चीज होती है। मसलन कपड़े और बदन के लिए साबुन, लोहे के लिए आग की भट्टी। दिलों की सफाई करने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है, और कोई चीज अल्लाह के अजाब से बचाने वाली अल्लाह के जिक्र से बढ़कर नहीं है। इस हदीस में चूंकि जिक्र को दिल की सफाई का जरिया और सबब बताया गया है, इससे भी अल्लाह के जिक्र का सबसे अफजल होना साबित होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जो शख्स माल खर्च करने में तंग दिली दिखाए और दुश्मन से जिहाद करने में बुज़दिली और खौफ महसूस करे और रात के क़याम व इबादत से घबराए, उसके चाहे कि वो तलाफी ये माफात के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करे और सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर का वजीफा शामिल रखे और कसरत से पढ़ा करे। कि अल्लाह का जिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इबादत में कमी कसर जगह रह जाए तो फिर रब का जिक्र उस कमी और कसर को पूरा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मजलिस में थे, 2 शख्स आते हैं और एक शख्स शरीफ आदमी था, उसको छींक आ गई तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा शख्स अगरचे शरीफ नहीं था, यानी कि वो, ताहम उसने छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपने मेरी छींक का जवाब क्यों नहीं दिया, और उनका जवाब दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने अल्लाह का जिक्र किया तो मैंने भी उसका जिक्र किया, और तुम अल्लाह का नाम लेना भूल गए तो मैंने भी तुम्हें बुला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा, सुबहान अल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा कहे तो उसको 10 गर्दनों के आजाद कराने और 7 ऊँटों के ज़बह करने से भी ज्यादा बेहतर सवाब देगा। ये रब करीम के जिक्र के कमालात हैं। यही वजह है कि कुरान में जगह जगह रब करीम ने बाकी इबादत के साथ सबसे ज्यादा अपनी याद का कहा, अपने जिक्र का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम अपने ईमान को ताजा किया करो। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस तरह ताजा करें? फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये दोनों कलमे अर्श पर ठहरते हैं और जमीन और आसमान इसके सवाब से भर जाते हैं। हर रोज 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने से सब गुनाह माफ हो जाते हैं और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने से जन्नत में खजूरों के दरख्त लगाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसियत से जिक्र के मुताल्लिक औरतों को यह हुक्म दे रखा है कि तुम सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल मालिकुल कुद्दूस कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन यही कलमात गवाही देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की इस कदर अहमियत उजागर कर दी और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जा बजा कुरान पाक में ये फरमा दिया कि जब भी जहां भी जिस हाल में हो, बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े, करवट बदलते हुए, रात को सोते वक्त करवट बदलो तो भी अल्लाह को याद करो। अल्लाह अकबर। जिक्र इलाही बख्शिश का जरिया, इबादत में कमी को पूरा करने का जरिया ये रब ने फरमा दिया। अल्लाह करे कि हमें तौफीक रहे कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद को हमेशा अपने साथ रखें और हम सब अपनी तरजीहात में ये शामिल कर लें कि हमें हर लम्हे हम दोस्तों को याद करें, रिश्तेदारों को याद करें, हम खाना खाएं, हम चहलकदमी करें, हम सफर में हों, हम हजर में हों, लेकिन रब्बे करीम हमारे सामने रहे। और यही असल है कि जब रब्बे करीम सामने रहेगा तो इसका मतलब है कि हम हर वक्त रब्बे करीम के उस कनेक्शन में रहेंगे जिसके बारे में रब्बे करीम ने फरमा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो वो फरमाते हैं, उन्हें अपनी किताब में यानी इस हदीस का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, कलमतान हबीबतान इलर्रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कि कितना बड़ा कि सहीहैन में इसका जिक्र है। रब्बे करीम हमें अपनी याद से गाफिल ना होने दे, ऐसे असबाब बनाए रखे कि हम उसकी याद के साथ जुड़े रहें। हमारी मजलिसों को, इसलिए कि जिस मजलिस में अल्लाह रब्बुल इज्जत की का जिक्र हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, फरिश्ते तलाश करके उस मजलिस में पहुंचते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ते तलाश करते हैं कि जहां रब का जिक्र हो रहा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, तो वह इकट्ठे होते जाते हैं, हत्ता कि फरिश्ते इस कदर इकट्ठे होते हैं कि उनका अंबार आसमान तक पहुंच जाता है। और रब करीम फिर उनसे पूछते हैं कि हाँ, मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? तो फरिश्ते कहते हैं कि रब करीम वो तेरी याद कर रहे हैं, तुझसे माफी मांग रहे हैं, तुझसे जन्नत का मुतालबा कर रहे हैं, तुझसे जहन्नम की आग से नजात का मुतालबा कर रहे हैं। तो रब करीम कहते हैं कि हाँ, अगर वो मुझे याद कर रहे हैं तो मैंने उन्हें बख्श दिया। तो वो फिर फरिश्ते कहते हैं कि रब करीम, उसमें एक शख्स ऐसा भी था जो उस मजलिस में नहीं था बैठा हुआ, वो वैसे गुजर रहा था, उसने देखा कि लोग बैठे तुझे याद कर रहे हैं, वो वैसे ही वहां रुक गया। तो रब करीम ने कहा, जो उसमें रुक गया मैंने उसे भी माफ किया। तो रब की याद जो है, इससे जुड़े रहना ही बख्शिश है, इससे जुड़े रहना ही तल्लक है। और ये तल्लक फिर हमें दुनियादारी तक मोहित कर देता है। जब तल्लक रब के साथ हमेशा रहेगा तो रब के बंदे फिर इग्नोर नहीं होते, फिर रब के बंदों के मसाइल अपने मसाइल बन जाते हैं, फिर आदमी दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है, रब दूसरों को हमारे लिए खड़ा कर देता है। अल्लाह करे हमारी जिंदगी में ऐसा हो और हम इस चीज के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत